Welcome back, 12th science students. Now or today we will see the next topic. अब तक हमने देखा मेंडल्स के लॉज और डेविएशंस ऑफ मेंडल्स रेशो और डेविएशंस फॉर मेंडल्स रेशो. मेंडल्स के बारे में पी प्लांट वगैरह, पाइजम प्लांट, व्हाई ही चूज प्लांट पी प्लांट, then the law of dominance, law of segregation, law of independent assortment, monohybrid cross, monohybrid ratio, dihybrid cross, dihybrid ratio, etc., etc. Then what are the interactions, intragenic, intergenic. After that we will see the structure of chromosome. Here the new topic for 12th science, structure of chromosome. अभी तक हमने देखा कि genes which are the hereditary which transmit hereditary characters from one generation to another generation. These genes are present on the chromosomes. Thus chromosomes are filamentous bodies. These chromosomes are filamentous bodies and these bodies are present in the eukaryotic nucleus. And this term chromosome is given by the scientist or a botanist or scientist W. Wozniak in 1888. W. Wozniak. This chromosome, chroma means color, Latin words, chroma means color and this zome means body. Chromosome, color, body. These are present in the cell or in the nucleus of cell and they are having the genes which are present on these chromosomes. ये यहाँ पे हमने एक जनरल डायग्राम दी वाली है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है क्रोमोसोम का लाइक दिस, ये हम देखेंगे आज स्ट्रक्चर के बारे में. सो दिस क्रोमोसोम कलर बॉडी, commonly known as color body, this term was given by W. Wozniak in 1888. These chromosomes are present in the cell of every living organism. अभी अब तक हमने देखा कि जीन्स कैरेक्टर कैसे ट्रांसमिट करते हैं, जीन्स कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, वन जीन वन कैरेक्टर वगैरह वगैरह. लेकिन these genes are present on the chromosomes and this structure of chromosomes we will see. These chromosomes are number of chromosome and size of or shape of chromosome varies from species to species. Remember, size, color, shape, number of chromosomes. For example, in human body, in every living cell of the human body there are 46 chromosomes. Every cells, वो कौन सी भी सेल रहने दो, there are 46 chromosomes in a human cell. 46 chromosomes बोलो या 23 pairs, ऐसे ही बोल सकते हैं. Humans are diploid and the number of chromosome is specific and constant for a particular species. Remember, therefore it is of great importance in the study of phylogeny and taxonomy of the species. बहुत important part है इस chromosomes का. और ये chromosomes जो है, the term chromosomes given by W. Wozniak, then each this chromosome का जो स्ट्रक्चर है वो हम देख सकते हैं क्लियर कट इन द फेज, मेटाफेज, where the chromosomes are very condensed and looks clear cut in this phase. There are many phases in the cell division or in interphase, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज वगैरह वगैरह. लेकिन हम अगर मेटाफेज की अगर स्टडी करेंगे, सेल इन मेटाफेज कंडीशन, देन द क्लियर कट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम वी विल सी. सो दिस क्रोमोसोम्स हैविंग varies from 0.1 to 33, 0.1 to 33 micron. About the length, 0.1 to 33 micrometer, micrometer in length
किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में 0.1 माइक्रोमीटर रहेंगी, किसी में 0.2, किसी में 0.3, तो इट वेरीज फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू 33 माइक्रोमीटर इन लेंथ, while breadth 0.2 to 2 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। बोलो लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और थिकनेस। वेरीज, अभी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में साइज मैं बताया, वेरीज फ्रॉम स्पेसीज टू स्पेसीज। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में 0.2 रहेंगी, किसी में 0.3 रहेंगी, किसी में 1 रहेंगी, किसी में 2 रहेंगी, किसी में 1.5 रहेंगी। थिकनेस, लेंथ भी वैसी है, इट वेरीज फ्रॉम स्पेसीज टू स्पेसीज। रिमेंबर दिस पॉइंट। दिस क्रोमोसोम का अगर स्ट्रक्चर अपने हमको पढ़ना है तो हम ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कौन से स्टेज में पढ़ेंगे, देखेंगे माइक्रोस्कोप, अंडर द माइक्रोस्कोप इन मेटाफेज कंडीशन। सो दिस सेल डिवीजन ये अलग टॉपिक है, अलग चैप्टर है, हम बाद में देखेंगे। ये जो हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन, क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग ओनली सेल डिवीजन। दिस क्रोमोसोम्स रिमेंबर are visible only in during the cell division, and about especially at in the metaphase they are looks clear. They are capable of self replication. क्रोमोसोम्स की खासियत क्या है, वो सेल्फ रिप्लिकेशन, सेल्फ रिप्लिकेट, उनका एक क्रोमोसोम 2 के 4 होना वगैरह जो बोलते हैं हम रिप्लिकेशन, वो इनमें सेल्फ रिप्लिकेशन है। एंड दे आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्लिकेशन एंड प्ले अ विजुअल रोल इन हेरिडिटी, म्यूटेशन, वेरिएशन एंड इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स पास होना है नहीं होना है, ये क्रोमोसोम्स पे डिपेंड रहता है, क्योंकि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। मींस क्रोमोसोम्स plays an important role in heredity, variation, evolution and also mutation. These chromosomes play an important role in heredity, mutation, variation and evolutionary development of eukaryotic species. And these chemically eukaryotic chromosomes are made up of DNA, histone and non-histone proteins. Remember, ये point हमने classification में देखा है। These chromosomes are, अगर इनका केमिकल कंपोजिशन हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के टिपिकली, तो these chromosomes are made up of DNA, histone and non-histone proteins in eukaryotic बात कर रहे हैं हम। and what about the function of chromosome? main function is it carries heredity. जो भी हेरिडिटरी है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, तो ये हेरिडिटरी कैरेक्टर जो है ये क्रोमोसोम्स ही कैरी करता है, जो कि क्रोमोसोम्स सेल्स में है। These chromosomes functions or it plays important role in hereditary characters or carries heredity. Simple function, chromosomes are carriers of heredity. These what about the numbers? वो भी बताया मैंने, जैसे साइज और शेप में वैरायटी है, वेरिएबल है, वैसे ही नंबर्स के बारे में बोलेंगे हम। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो आंकड़ा है, in every living organisms the number of chromosomes are fixed. for example in human, ऐसा नहीं है कि एक ह्यूमन में 46 है, दूसरे ह्यूमन में कम है, ज्यादा है, ऐसा नहीं है। in every human cell contains 46 chromosomes or in short 23 pairs. out of 46 44 are autosomes. 44 are autosomes, while remaining 2 are called sex chromosomes, which decide sex. सेक्स क्रोमोसोम का काम क्या है, सेक्स डिसाइड करना, मेल या फीमेल। उस पे भी कैरेक्टर्स रहेंगे, लेकिन मेन काम क्या है, सेक्स डिसाइड करना, वो काम है। वो दो जो सेक्स क्रोमोसोम्स है, दे आर नोन एज एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। इन फीमेल बोथ आर एक्स क्रोमोसोम, व्हाइल इन मेल एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। एक एक्स है, एक वाई है मेल में, फीमेल में both are X chromosomes. So remember this about the sex chromosome, and remaining 44 chromosomes are 22 pairs deciding the hereditary characters from one generation to next generation or parents to offsprings. बच्चों में जो कैरेक्टर्स कौन से जाना है वो एटोसोम्स डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल हाइट है, कलर ऑफ द आईज है, या शेप ऑफ द आईज है, कलर ऑफ द हेयर है, शेप ऑफ द हेयर है, अलग अलग जो कैरेक्टर्स है वो 44 एटोसोम्स डिसाइड करते हैं। व्हाइल सेक्स क्रोमोसोम्स डिसाइड सेक्स एंड रिलेटेड टू सेक्स कैरेक्टर्स
some problems are also there in sex chromosomes like color blindness, hemophilia, हम बाद में देखेंगे. Then what about the हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ये क्या है? अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक ही सेट है तो उसको बोलते हैं हम हैप्लॉइड. दो सेट है तो डिप्लॉइड. ह्यूमंस आर डिप्लॉइड. दो सेट हैं हमारे बॉडी में क्रोमोसोम्स के. सेल में दो सेट रहते क्रोमोसोम्स के. सो वी आर डिप्लॉइड. अगर एक सेट है तो हैप्लॉइड. तीन सेट है तो ट्रिप्लॉइड. चार सेट है तो टेट्राप्लॉइड. ऐसा माना जाता है. Then we will see the structure. Actual structure जो है chromosomes का, these are most best visible under the microscope in metaphase condition. These chromosomes, अगर यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे हम तो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है. These are called sister chromatids, and these sister chromatids are joined at middle or where that point is called centromere. That point is called centromere. Then अगर हम डिटेल में देखेंगे ये स्ट्रक्चर, साइंटिफिक स्ट्रक्चर, तो दैट देयर आर फाउंड सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन फाउंड हियर. प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, दिस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर कंसिस्ट अ डिस्क शेप प्लेट कॉल्ड निटोकोर. इट इज निटोकोर. स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन. अभी ये सेल डिवीजन हमने 10th में पढ़े वाला है. स्पिंडल फाइबर्स क्या है? स्पिंडल फाइबर्स कब फॉर्मेशन होता है? स्पिंडल फॉर्मेशन का काम क्या है? वो स्पिंडल फॉर्मेशन फाइबर्स जो है या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को अटैच रहते हैं और गेट अटैच्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन. बिसाइड दिस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन some few chromosomes possesses additional one or two constriction called secondary constriction. कुछ क्रोमोसोम्स में और भी कंस्ट्रिक्शंस है बिसाइड द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. इसके अलावा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. दिस सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन इज न्यूक्लियोलस बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग इंटरफेस. अभी ये जो कंडीशंस है इंटरफेस और सेल डिवीजन, वहां पे न्यूक्लियोलस बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग इंटरफेस. A satellite body, जिसको हम सेट बॉडी बोलते हैं, that set body is attached at secondary constriction. यहाँ पे हम देख सकते हैं नीचे एकदम सैटेलाइट जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को अटैच दे वाला है. सैटेलाइट बॉडी जिसको बोलते हैं हम. इन वेरी फ्यू क्रोमोसोम्स इट इज फाउंड. This is also secondary constriction. Here also found secondary constriction. Secondary constriction. Here we will see secondary constriction 1. Secondary constriction 1, where we find the satellite body is attached, which is at the end. These chromatids consist of double-stranded DNA molecules, which extends from one end to chromosomes to other. And this depending upon the position of centromere. सेंट्रोमियर की पोजीशन कहां पे है? समझो फॉर एग्जांपल इसके यहां पे हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में. दीज आर कॉल्ड क्रोमोनिमेटा. दीज आर कॉल्ड क्रोमोनिमेटा. These are called chromonemata. So this is about the structure of chromosome. प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन क्या है? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन क्या है? सैटेलाइट क्या है? क्रोमोनेमेटा. व्हाट आर क्रोमोनेमेटास? निटोकोर. इसके बाद में हम देखेंगे this chromosome depending upon the position of centromere. Depending upon the position of centromere, after the structure, size, shape, function, these chromosomes are of 4 types depending upon the position. अभी यहाँ पे पोजीशन अगर मिडल में है, यहाँ पे डायग्राम्स के खाली डायग्राम देता हूं मैं, आप समझ जाएंगे.
ये 4 क्रोमोसोम्स हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। हम इसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक दिस क्रोमोसोम, जहां पे सेंट्रोमियर जो है वो मिडल में है। सेंट्रोमियर इज इन द मिडल एंड बोथ द सिस्टर क्रोमैटिड्स आर same size. Both the sister chromatids are same size. This chromosome is called metacentric. Then submetacentric. Submetacentric. That means near to middle. मिडल के आसपास अगर है कौन? सेंट्रोमियर। रिमेंबर सेंट्रोमियर की बात कर रहे हैं हम। सेंट्रोमियर कहां पे है? अभी समझो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे सेंट्रोमियर है। दीज आर कॉल्ड क्रोमैटिड, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियर, दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिड, दिस इज आल्सो कॉल्ड क्रोमैटिड। अगर सेंट्रोमियर सेंटर में है या मिडल में है, दैट इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक। मिडल के नजदीक है तो सब मेटासेंट्रिक, और एंड के नजदीक है तो दैट इज कॉल्ड एक्रोसेंट्रिक। नियर टू द एंड, और अगर एंड को है दैट इज कॉल्ड टेलोसेंट्रिक, एट द एंड। तो डिपेंडिंग अपॉन सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है, कहां पे है? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। दीज आर दी 4 chromosomes depending upon the position of centromere. There are 4 types of chromosomes. Metacentric. अभी ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और एक बात यहाँ पे है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिस मेटासेंट्रिक looks like this V shaped. This submetacentric looks like L shaped. This acrocentric looks like J-shaped, while this I-shaped or rod-shaped. During cell division, सेल डिवीजन जो चैप्टर हम देखेंगे, या अगर आपको मालूम है सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स कैसे सेपरेट होते हैं, क्रोमोसोम्स कैसे कंडेंसेशन होता है, कैसे कंस्ट्रिक्ट होते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिस मेटासेंट्रिक लुक्स लाइक V-shaped, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम लुक्स लाइक दिस submetacentric looks like L-shaped. This acrocentric chromosome looks like J-shaped, and this is I-shaped. So these are the 4 types of chromosomes depending upon the centromere where it is present, where at the middle, near to the middle, near to the end, or at the end. These are the 4 types of chromosomes. You can draw these diagrams, and these are all the diagrams in the cell division. These chromosomes looks like while in cell division. So this is about the structure of chromosome and the classification of chromosome: structure, size, length, breadth, thickness, shape, function, what is haploid, diploid, वगैरह वगैरह। तो remember, every living organism having the cell is the basic fundamental unit, and each cell having the chromosomes. So आपको ये वीडियो कैसे लगा? लाइक कीजिए। रिमेंबर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए वाली है। अगर इसके पहले की वीडियो आप देखना चाहते हो, देखना पसंद करना चाहोगे, क्योंकि ये आगे की वीडियो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी वाली है, वो लिंक आप क्लिक कीजिए तो आपको बिफोर की जो वीडियोस है वो सब आपको देखने को मिलेंगे। सो हियर वी फिनिश द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, फंक्शन वगैरह वगैरह। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।